it's a new thing nowadays, very popular. Everybody is running after it, and I'm this title is like just a hint that what we'll be discussing today: digital marketing scope and career opportunity or tools and all. What sir probably have shared with you. So first of all, we'll just let us have a look on this. How digital is different from traditional. In fact, it is just an extension or it is just a new paradigm into marketing space. It is not something which can be separated from marketing. Like sell something, get a customer for a day, help someone get a customer for life. Now it's not about pushing the things out. If you tomorrow you post on your Facebook like I have this product, kindly buy it. Not a single person will buy it because this is not the way to sell a product. You need to help people, and digital marketing is totally based on step one, step two, step three, step four. It's not like you all must have gone through the AIDA model: attention, interest, desire, and action. So the action part comes quite later in the case of digital marketing. First of all, you attract the customer and all, then a desire, then an interest is created. But I won't go into that depth. That is a typical marketing thing. What is in digital marketing? There are a lot of platforms: Facebook, YouTube, Quora, TikTok, then you have Twitter, LinkedIn, so many things. And what do we know about digital marketing? Typically, like sir has rightly mentioned, that anyone who can post on Facebook and who can do a tweet thinks that I know about digital marketing. Or one more particular myth is like how to earn from YouTube. Right? You can earn crores of rupees from YouTube, and if there are 1 lakh views on YouTube, we can earn money. So there are a lot of myths about YouTube also, about the Facebook also, about the even the search engine optimization and search engine marketing also. Half knowledge or less knowledge is again it's a very much harmful for the students also and for the practitioners also. When we talk about industry in digital marketing, it is again highly competitive. Industry, like I share with you an example, you will laugh. My neighbor is starting a venture on Kingdom of Cakes करके उनका एक venture है, and he asked me that I need a digital marketing professional. So we were just talking informally, and he told me that a peon charges 12,000 rupees. Peon salary is 12,000 rupees. So by the time we were having a cup of tea together, and after 1 hour he said, okay, I said, okay, how much you offer to a digital marketing specialist? He said 15,000. So I said, sir, कुछ तो शर्म करो, आप पियोन को 12,000 दे रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को 15,000. मतलब एटलीस्ट कहीं तो कुछ. तो मार्केट को अभी खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ शुड वी हायर पीपल, व्हाट शुड वी पे, हाउ मच वी शुड expect from a digital marketing specialist. So here half knowledge will not work. I don't say that anyone can have full, even I don't have full knowledge. I also say कि मुझे भी 10-15% आता है digital marketing अभी. But at least that whole scenario one should know कि इसमें ये नहीं है कि एक Facebook हमें आ गया and we are expert, या थोड़ा सा SEO हमें आ गया and we are expert. So to understand it, we need to know कि digital इतना grow क्यों कर रहा है. Even if we buy a car, like last year I bought a car, Honda Amaze. So I did not go to any showroom before I did all the research at my place, on my laptop, on my phone, and listening to the YouTube videos. And here comes the business. Here comes the business of Google. Here comes the business of you say people who are making the videos on YouTube. And here comes the business of everyone. YouTube पे वीडियो मैं सुन रहा हूँ because I want to buy a car. तो यहाँ हर किसी का बिजनेस है. कार वाले का भी बिजनेस है, कार देखा का भी बिजनेस है. Business I'm talking about digital marketing business, right? So digital is the first thing in the information search behavior when we talk about the consumer behavior process. Need recognition, information search, evaluation of alternatives.
तो नीड रिकॉग्निशन के बाद जब मैंने इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए सोचा तो मैं डिजिटल पे आया सबसे पहले। तो इसलिए डिजिटल जरूरी है, बिकॉज इट इज अ टच पॉइंट फॉर द कस्टमर। जहां कस्टमर है वहां मार्केटर है। मार्केटर कहां जाएगा? कस्टमर को पकड़ेगा ना। कस्टमर को आप नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो कार तभी बेचूंगा जब आप मेरे शोरूम पे आके कार देखोगे तभी। मैं डिजिटल पे नहीं अपनी कार की फोटो डालता, तो वो तो फिर बेच ही नहीं पाएगा। So this is something that I have taken from some of the very popular institute. It took over 100 years for Coca-Cola to earn the brand value. 15 years to Google, 10 years to FB, 7 years to Flipkart, and 4 years to WhatsApp. The dissemination of information is very, very fast in digital. Quickly, I'm coming to like this is what how people are still disconnected and they're virtually connected. No one is talking to each other and everybody is waiting for the photographs to be taken and posted on the social media. Now you see how many people in the lockdown period, people are posting what, like the food stuffs and whatever they make and the yoga pictures and all. So I don't really like a lot of definitions and theory in digital marketing, but this is just digital marketing, online marketing, e-marketing, more or less same terms. So don't become an orthodox to differentiate between online and digital. It's all internet connected devices wherever we use. Yeah, this is the most important one. Like, what is the scope of digital marketing tools or scope of digital marketing? So everybody is connected now. I mean, if any questions you pose on chat box, Neeraj sir will let me know. Yes, sir. Sure. Okay, thank you. So we all are aware of social media marketing. Now let us just take an example of Facebook. What we can do on Facebook? We can post pictures, we can post text, we can post videos, video links, we can post a video on YouTube and we can post a link. So this is very simple, everyone knows about it. We can make an event, create an event, we can create an advertisement. So when it comes to creating an advertisement, it totally shifts from a consumer's cup of tea to a marketer's tool. Consumer enjoys posting the videos, posting the pictures and sharing the pictures, commenting on them and all. But when it comes to Facebook advertising or making a Facebook group, I mean, I will tell you how people are earning from Facebook groups. Like there is a Facebook group there may be a lot of on this topic, startups group. Now you see the startups group में ये startups में क्या होता है ना, they are buyers and sellers of each other also. Like one startup is doing a packaging business, the other startup is doing some chocolate business or something. So he needs help from the packaging business. So they get work from each other. Now in that startup business, the moderator is charging people for advertising on the group itself. You know, I mean, आपका कुछ नहीं है ना, आपकी वेबसाइट है ना, आपने फेसबुक पे ग्रुप बनाया उसमें, but yes, you can only charge when there is a substantial number of people. One of my friends, Kanika Malhotra, she has a diabetic care group. She's working with a company. In diabetic care group, she has 1,40,000 participants in one group on Facebook. This I'm telling you, a free of cost thing from which you can earn, right? So she posts about the diabetic things and she helps people. You know, on group you cannot charge money directly again. You help people, like you provide tips for diabetes and all, and later on when the people are happy, then you simply post like we have this course of 30 days or we have 15 days guidance plus this material and it will cost you 1,000 rupees or something, and a lot of people will buy that. So this happens in digital marketing. Right? First of all, you start helping free of cost, and slowly people become your loyal users of your information, and then you start selling your stuff. Social media marketing is very vast. You can do, and most of the platforms like Twitter, YouTube,
and Facebook, the three big one, and Instagram, of course, the Facebook's baby only, and Instagram is the next big thing basically. So all four have similar kind of approach for advertising. Like जैसे आप Facebook पे ऐड करना चाहें तो आप मिनिमम 40 रुपीज से पर डे 40 रुपीज पर डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं. गूगल एड्स डिफरेंट है, गूगल एड्स को सोशल मीडिया में नहीं मानते हैं. गूगल एड पे 20 रुपीज पर डे से आप एड स्टार्ट कर सकते हैं. तो स्मॉल रिटेलर्स, स्मॉल मार्केटर्स के लिए, ई मार्केटर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, राइट. लीड मैग्नेट्स भी हैं, लीड फॉर्म्स भी हैं. मतलब अकेला फेसबुक एडवर्टाइजिंग कैन टेक अराउंड 1.5 डे टू अंडरस्टैंड थोरोली. जैसे सर ने बोला कि 2-3 दिन में हम कराते हैं, तो 2-3 दिन में हम इतना कराते हैं कि बच्चा अपने आप से, फिर स्टूडेंट या जो भी लर्नर है हमारा, वो अपने आप से फिर कर सकता है कि अच्छा मुझे ये रास्ता मिल गया. जैसे कि ऐड कैसे क्रिएट करें, वो हम ऐड क्रिएट करके बता देते हैं, तो एक रास्ता मिल जाता है कि अच्छा अब मैं कर लूं, हाँ ये ऑब्जेक्टिव है, इससे ऐसे करना है मुझे, या लीड फॉर्म कैसे बनाना है, वो 2-3 दिन में हो जाता है. देन not going into detail, search engine optimization I'll discuss, search engine marketing I'll discuss, web analytics, AdSense, AdWords, email marketing, affiliate and all. चलो इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से करते हैं. एक वेबसाइट, एक ब्लॉग पे चलते हैं पहले. देयर इज अ ओके. All of you can see this blog. This I prepared in 2008, I believe. 2008. मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन मैंने ये ब्लॉग स्पॉट बना लिया था. It's visible. It's visible ना. So इस पे आप काफी सारे ऐड देख रहे होंगे. ये एक ऐड है, लायन किंग, डिज्नी, हॉटस्टार, सब्सक्राइब 14.99 प्रीमियम. ये 2 ऐड दिख रहे होंगे आपको, अमेजोन और अमेजोन के कैस्पर्स की, और उसके बाद टिकटॉक का ऐड आ रहा है, उसके बाद ये ऐड. ये एड्स कहाँ से आते हैं और ये मतलब मेरे ब्लॉग पे क्यों आए हुए हैं, क्या है ये, मतलब इसका टेक्निकल नाम क्या है, कैन एनीवन जस्ट टेल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अभी हम थोड़ा पेपर पे एक्सप्लेन करूंगा मैं, वर्ड पे टाइपिंग करके. तो क्या आप चैट पे मेरे को बता सकते हैं फटाफट कि ये क्या है, मतलब इन एड्स को क्या बोल रहे हैं और ये क्यों आए हुए हैं और मेरे ब्लॉग पे कैसे हुए. मैं चैट पे आ जाता हूँ. हाँ जी, यस इट्स क्लियर. ओके, कोई भी स्टूडेंट आंसर करना चैट पे प्लीज. पॉपअप्स नो. The person who invented pop-ups has apologized to the whole world now for making the worst kind of advertisement. I forgot his name. Not pop-up actually. Any more answers? बिल्कुल देखिए, कोई आंसर खराब नहीं होता है. इस आंसर से मुझे ये पता लगेगा कि गूगल एड्स वेरी गुड. ओके, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, नहीं रोहित, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक की वजह से नहीं आए. मेरे ब्लॉग का ट्रैफिक बहुत ही कम है, मतलब इट्स नॉट ए कमर्शियल ब्लॉग, जस्ट कि स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट डाल दिए, और आप देख रहे हैं ना असाइनमेंट टॉपिक्स हैं, कोई मीडिया के बारे में थोड़ा सा डाल दिया, ऐसे ही कोई आर्टिकल बना के, तो ट्रैफिक तो बहुत कम है. बिकॉज ऑफ कीवर्ड्स, गुड, बट नॉट बिकॉज ऑफ कीवर्ड्स. एक आंसर 50% बिल्कुल करेक्ट है, गूगल एड्स. जैसे सर लॉजिक में बताते हैं ना कि सक्सेस और फेलियर वाला, गलत आंसर भी 50% करेक्ट, तो ये वैसे ही 50% करेक्ट है, गूगल एड्स. वेरी गुड. चलो हम देखते हैं इसकी वो देखते हैं है क्या. देखो मैंने एक ब्लॉग बनाया, ठीक है, ब्लॉग बनाया ब्लॉग स्पॉट पे. ये फ्री है, गूगल की तरफ से है, बिल्कुल फ्री है, आप बना सकते हैं इस पे. और इसमें देखो ये पेजेस भी बनते हैं, ये टिप्स फॉर एकेडमिक सक्सेस, होम, ऐसे पेजेस भी बन जाते हैं, फॉलोअर्स, ठीक है. उसके बाद आप भी एडवर्टीजमेंट्स ये बना सकते हैं, सोशल मीडिया शेयरिंग टूल,
फेसबुक, ट्विटर और ये, राइट। तो ये खुद एक्सप्लोर किया, तब आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग in 2017-18 in a formal way, but informally I have been learning it for 10 years. तो उसमें खुद जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। अब इसमें जो ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट चेंज भी हो गया इतनी जल्दी, ये चेंज कैसे? किस चीज का ऐड था यहाँ? लायन किंग का था, अब ये आ गया और एक्सपर्ट्स में वेब डेवलपमेंट कंपनी है ना, तो अब ये वेब डेवलपमेंट का हो गया। एनी आंसर्स? ओके, कोई बात नहीं। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड क्या था ये समझना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है बिगिनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यहां से होनी चाहिए। कि पहले क्या होता था कि एक कोई भी आदमी, एक बार इसको ले लेते हैं वर्ड फाइल को, मैं थोड़ा थोड़ा टाइप करके आपको बताता हूँ। कोई भी आदमी पहले क्या करता था, वेबसाइट पे ट्रैफिक आता था, वो ट्रैफिक को दिखा के मार्केटर से स्पेलिंग को थोड़ा सा, स्पीकिंग तो मेरी अच्छी है वर्ड में, लेकिन स्पेलिंग खराब। वेबसाइट ट्रैफिक को दिखा के उसको क्या मिलते हैं? एडवर्टीजमेंट। तो मार्केटर के पास जाता था, उसको देता था एडवर्टीजमेंट। अब वो एडवर्टीजमेंट क्या होता था? वो स्टिल होता था, वो डायनेमिक नहीं होता था। इसका मतलब क्या हुआ स्टिल का? ये दिख रहा है ना, क्लियर है ना? मैं इसको बढ़ा देता हूँ। जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। हाँ, कि मेरी एक वेबसाइट है, उस पे भाई मेरे पास 1 लाख लोग आ रहे हैं, 1 लाख लोग, जैसे आप में से किसी ने बड़ा अच्छा आंसर किया कि ट्रैफिक, लेकिन वो आंसर अब सही नहीं है, वो पुराने टाइम में सही था। तो ट्रैफिक है तो मैं ही कहता था ठीक है, मैं मार्केटर का एक बैनर लगा देता हूँ और मुझे वो 5,000 10,000 पर मंथ मिलते रहेंगे और 1 लाख लोग उस एड को देखते रहेंगे। फिर मुझे क्या करना पड़ता? 1 महीने बाद दूसरा मार्केटर ढूंढना पड़ता था, उसका बैनर लगाना पड़ता था, वो बैनर सेम रहता था। यहाँ तो बैनर चेंज हो रहा है ना। ये है क्या? इसके ऊपर एक बार कर्सर लेके जाते हैं। एड्स बाय गूगल है ये, यानी कि गूगल तो इन्वॉल्व है इसमें। ये गूगल जो है ना, ये 80% डिजिटल मार्केटिंग है आपकी, 80 नहीं तो 60-65 तो है ही, ठीक है। गूगल ने क्या किया? गूगल के पास इस समय लगभग 20 मिलियन ब्लॉग और वेबसाइट्स हैं, ऐसे मेरे जैसे लोग। गूगल ने कहा कि छोड़ो यार, तुम्हारा ये मॉडल बिल्कुल खराब है, एक ही बैनर तुम लगाओगे 1 महीने तक। मान लो वो शादी.com का बैनर है, हो सकता है उसमें कोई इंटरेस्टेड है, जिसकी शादी हो गई वो इंटरेस्टेड नहीं है। मान लो कि वो कोई फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट का बैनर है, मेल है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो तुम्हारा तो ऑडियंस खराब हो गया। ऐड होना चाहिए डायनामिक, बेस्ड ऑन द ब्राउजिंग हिस्ट्री, ठीक है। ये 2 ऐड प्लीज आप इग्नोर करें, क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग के ऐड है। ये मैंने एफिलिएट किया हुआ है अमेज़न पे, उसके ऐड हैं, इनको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप देखिए इसमें कहीं भी गूगल एड्स बाय गूगल नहीं है। देखिए कहीं नहीं है ना, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन इसमें है, ये एड्स बाय गूगल है, ठीक है। ये एड्स बाय गूगल है। टिकटॉक एड्स, टिकटॉक गूगल के थ्रू ऐड कर रहा है मेरे ब्लॉग पे कि टिकटॉक पे ऐड करो, राइट। तो गूगल ने क्या किया? एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम कहते हैं एडसेंस। उसने ये कहा कि सपोज आई एम ए ब्लॉगर अरुण मित्तल, आप एडसेंस पे आओ, ठीक है, मैं आपको मनी दूंगा, आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसने हॉटस्टार को ये कहा, हॉटस्टार इज अ मार्केटर, ठीक है, हॉटस्टार को ये कहा कि तुम एड्स पे आओ। अब ये एड्स ध्यान से देख लो, ये टेक्निकल टर्म है। एड्स मींस गूगल एड्स, जो पहले जिसका नाम गूगल एडवर्ड्स था, गूगल एड्स पे आओ, ठीक है। और फिर क्या किया? बीच में इसने अपना गूगल एड्स और एडसेंस, ये 2 अलग अलग अकाउंट है। मुझसे कई लोग पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड एडसेंस, या गूगल एडसेंस कर लो। सिंपल आंसर ये है, गूगल एडसेंस इज टू अर्न मनी। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो गूगल एडसेंस पे जाइए, और अगर आपको पैसे स्पेंड करने हैं, खर्च करने हैं, आप कहां जाएंगे? गूगल एड्स पे। यानी कि गूगल एड्स अकाउंट बनाओ
गूगल को पैसे दो, वो आपके ऐड दिखाएगा जगह जगह पे। एक बात बताइए, गूगल के पास अपना क्या है? ये गूगल का है? नहीं, ये तो मेरा है, ये मैंने मोनेटाइज किया है, गूगल को परमिशन दी है। अगर मैं गूगल को परमिशन ना दूं तो गूगल इस पे ऐड नहीं दिखा सकता। ये क्लियर होना चाहिए कि गूगल ने मुझे ये कहा कि आप ऐड दिखाओ, मैं आपको पैसे दूंगा। गूगल का बिजनेस मॉडल ये है कि वो अगर 100 रुपीज यहां से लेता है, मुझे देता है 55 रुपीज। तो 100 रुपीज में कितने ऐड दिखाएगा, कितना इंप्रेशन होगा, क्या चीज होगी, ये पूरी एक कहानी है। गूगल एड्स को अकेले समझना मतलब कम से कम 1 वीक लगेगा आपको, फुल डे लगाओगे तो आपको गूगल एड्स पूरा समझ आएगा फिर। ठीक है, तो ये अनंत है डिजिटल मार्केटिंग, मतलब पूरी एक MBA हो सकती है इस पे। तो ये समझ आया? किसी को क्वेश्चन है तो कोई बताइए। मतलब हॉटस्टार वाला गूगल एड्स बनाएगा, अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पैसे डालेगा, अपना एड डिजाइन करेगा, अपना वीडियो एड, जो भी एड है वो एड इस पे दिखाया जाएगा और उसके बदले में गूगल 45% चार्ज करेगा। उनका जो रेवेन्यू है ना वो बिलियंस में है, यूट्यूब का, फेसबुक का, बिलियंस में। ये 45% चार्ज, यही यूट्यूब का मॉडल है, क्योंकि ये ऐड यूट्यूब पे भी जा सकता है। गूगल एड्स के थ्रू आप यूट्यूब पे भी ऐड कर सकते हो, इस तरह के ब्लॉग्स पे भी ऐड कर सकते हो, वेबसाइट्स पे भी ऐड कर सकते हो। आप जहां भी देखो, एक टिपिकल शब्द को मुझे ध्यान रहता है, मैं थोड़ा लैंग्वेज पढ़ता रहता हूँ। देखिए, एड्स बाय गूगल, ठीक है, इम्प्रूव्स इंग्लिश स्पीकिंग। मेरे को इंग्लिश आती नहीं ना ज्यादा, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस एड। एनीवेज, सो योर एड इज ब्रांडिंग। सॉरी सर, 2 क्वेश्चन है सर यहाँ पे। फर्स्ट एक क्वेश्चन ये है सर कि क्या हम ये कर सकते हैं कि कौन सी ऐड मेरे साइट पे दिखाए? मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ ऐड, या गूगल क्या फ्री है? हाँ सर, मैं टू सम एक्सटेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जो अडल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उस तरह के ऐड मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। हाँ, बाकी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन गूगल नहीं देता। और कुछ स्पेसिफिकली भी कर सकता हूँ, कुछ ऑप्शंस है उसमें, वो मैं कर सकता हूँ। And the second question is, there's one more question that when you said it works on the browsing history, whose browsing history? Yes, the creator yes. or that of visitor? No, my browsing history sir, users browsing history। ये यूजर कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो अभी तो मैं खुद हूँ, है ना, अभी तो मैं खुद अपना ब्लॉग देख रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी अपना ब्लॉग देख रहा है, इसके ऊपर ना बड़े फनी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको। एक NDTV पे कुछ अंडरगारमेंट्स के ऐड आए हुए थे। NDTV पे अंडरगारमेंट्स के ऐड थे, तो किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लेके और फेसबुक पे डाल दिया कि इतना बड़ा चैनल है, उसको शर्म नहीं आती, अंडरगारमेंट्स के ऐड दिखा रहा है। तो किसी ने ये कहा कि भाई ये ऐड शर्म आपको आनी चाहिए, अंडरगारमेंट्स के ऐड ना आपके लिए आए हैं, ये NDTV में नहीं दिखाए, ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है। फिर उसने उस पोस्ट को डिलीट किया। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल लाइफ इंसिडेंट है सर, 1 साल पहले का। तो ये मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री है। मतलब मैं ढूंढ रहा था इंग्लिश के बारे में, शायद इसलिए आया। मैं शायद ढूंढ रहा था कि वेब डेवलपमेंट कंपनी से रिलेटेड हो, तो मैं कार के लिए ढूंढ रहा था तो कार के आए थे। तो ये मेरी, ये यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री है। इससे क्या है, सेम विद IRCTC। यस शिवम, बिल्कुल 100% यही हुआ था। किसी ने IRCTC के लिए भी यही बोला था और काफी वायरल हुआ था वो, बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि आप जो चीज हम ढूंढ रहे हैं गूगल पे, वो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री की वजह से गूगल हमें उस तरह के एड्स दिखाता है। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है सर? चैट पे देख लूं मैं। नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सर। पोस्ट ब्राउजिंग हिस्ट्री या क्रिएटर साइट और विजिटर्स ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उसके हिसाब से इतने डायनामिक है कि ऐड 5-5, 10-10 मिनट में चेंज हो जाते हैं। मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये फिर चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। अब ये कुछ डेटाबेस पोर्टल कुछ सिमिलर सा आ गया, ये नहीं होंगे चेंज क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग है। ये देखिए, फिर ये टिकटॉक है, ठीक है, राइट। तो ये मैकेनिज्म में हमें 2 चीजें क्लियर हो गई कि गूगल एडसेंस क्या है और गूगल एड्स क्या है। गूगल एडसेंस से हम पैसे कमा सकते हैं और इससे हम पैसे खर्च करते हैं। लेकिन क्या है, इसके लिए भी ट्रैफिक तो एक इंपॉर्टेंट चीज है,
ट्रैफिक कैन नॉट क्रिएट, ट्रैफिक से ऐड नहीं लूंगा मैं, ऐड तो मैं बिना ट्रैफिक के भी ले सकता हूँ। 6 मंथ्स पुराना मेरा ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग होना चाहिए और वेबसाइट पे डे 1 से मैं ऐड ले सकता हूँ। तो मेन चीज ये है कि ट्रैफिक ज्यादा आने से मुझे अर्निंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गूगल ना क्लिक पे पैसे देता है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं तो क्लिक करूंगा तो गूगल वो माइनस कर देता है मेरे क्लिक, तो ऑब्वियसली मेरे ब्लॉग पे मेरे क्लिक तो माइनस ही करेगा। लेकिन दूसरे लोग जब क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आई विल गेट मनी। अब हाउ मच आई विल गेट टोटली डिपेंड्स अपॉन बिड्स एंड ऑल। मतलब बिड्स का मतलब ये है, किसी ने एक वर्ड यूज किया था कीवर्ड्स, मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ। कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड जो ये हॉटस्टार है ना, ये कीवर्ड्स पे पैसे लगाएगा। कीवर्ड्स की एक वैल्यू होती है, कुछ कीवर्ड्स सस्ते होते हैं, कुछ कीवर्ड्स बहुत कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, है ना। जैसे मान लो कि वंस अपॉन अ टाइम डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड इज सपोज 1200 रुपए का है। ये सब बिडिंग में मिलता है, बिडिंग प्रोसेस होती है। 1200 रुपए का मतलब आप समझते हैं, अगर मैंने एक बार क्लिक किया उस ऐड तो हॉटस्टार के 1200 रुपए कट गए, मैं चाहे खरीदूं ना खरीदूं। और इस 1200 में से मुझे मिल जाएंगे 55%, विच इज ह्यूज अमाउंट। तो जनरली इतने महंगे कीवर्ड्स बहुत कम होते हैं, है ना। बट यस, द कीवर्ड्स एक्चुअली मतलब ओके, तो यहां पे ये कीवर्ड्स की एक कॉस्ट है जिसके हिसाब से ये काम करता है। तो वापस चलते हैं। इस मैकेनिज्म को समझने के बाद नेक्स्ट जो बिग थिंग आती है डिजिटल मार्केटिंग में, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ये तो मैंने एक क्लासिफिकेशन बनाया था, फ्री प्लेटफॉर्म्स, पेड प्लेटफॉर्म्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स टू अर्न। ठीक है, तो फ्री में तो आपका जो सोशल मीडिया पोस्ट है, ब्लॉग है, सपोज आप एक मार्केटर हैं, आप कैसे फ्री में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे? सोशल मीडिया पे डालेंगे अपना प्रोडक्ट, ब्लॉग करेंगे, यूट्यूब चैनल बना लेंगे, है ना। क्या आप अपना डालते रहेंगे और क्या करेंगे? खराब हो, इधर से कंप्यूटर आया है। यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप? मेल भेज सकते हैं, ईमेल ये फ्री है, राइट। इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब सोशल मीडिया पोस्ट हैं, दे आर ऑल फ्री। सबसे इंपॉर्टेंट आता है एसईओ। डिजिटल वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत फ्री की चीज कोई है तो वो है एसईओ। चलिए देखते हैं एक बार एसईओ को, फिर हम आएंगे पेड में। तो क्या है, इसी को एडवर्टीजमेंट में कन्वर्ट कर दो, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब मैंने मार्केटिंग वर्ड लिखा तो मतलब मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स टू अर्न कैसे करेंगे? एडसेंस, इन्फ्लुएंसर का मतलब है, देखिए दिशा पाटनी इज इन्फ्लुएंसर ऑफ कैल्विन क्लीन, दैट गर्ल whose daughter of Sridevi, Janvi Kapoor, she is influencer of brand ambassador, influencer of Naka. So ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, they earn for each post money। आप भी बन सकते हो इन्फ्लुएंसर, ठीक है। और आप किससे कमा सकते हो? यूट्यूब चैनल से कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? ये तरीका, इस पे मेरी एक्सक्लूसिव मैंने एक दिन की वर्कशॉप्स की है, 2-3, तो काफी स्टफ है मेरे पास। कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगा पीपीटीज वगैरह। नाउ when we talk about social media marketing or something, like if you spend money, see होता क्या है कि पैसा खर्च करने में ना कोई बुराई नहीं है, if you are getting an ROI, सिंपल। जैसे मान लो सपोज यू हैव स्पेंड ₹1 lakh, you have reached to suppose 10 people, maybe even 50,000 persons, कोई फर्क नहीं पड़ता। आउट ऑफ देम ये आइडिया लगा के आपको ये लगता है कि 500 can buy the product, which is a very good number, बहुत ही अच्छा नंबर है अगर ऐसा आ जाए, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। सो व्हाट इज माय कॉस्ट पर कन्वर्जन?
we use the words cost per lead, बहुत सारे मेट्रिक्स हैं इसमें, cost per conversion। तो cost per lead अभी छोड़ दो, कन्वर्जन पे लो तो कितना आया यहाँ से, 200 रुपीज या 2000? बहुत ही वीक है मैथमेटिक्स में। मेरे सर कितना हुआ? So we can't see your screen. Can't see screen. I'm sharing. We can see the screen is visible. Yes, it's visible. So it is 200, no? Hmm. Okay. Now I ask a simple question. If this is the matrix for advertising online, which products are advisable to be advertised? Suppose you are advertising a book which is of 200 rupees, तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, आपका जितना रेवेन्यू आया उतना आपका खर्च हो गया, तो 0/0, कोई फायदा नहीं है ऐसा ऐड करने से। बट इफ यू आर एडवर्टाइजिंग अ हाउस विच इज ऑफ 50 lakhs, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। 50 लाख रुपए के घर का अगर मेरे को पर कन्वर्शन 20,000 भी पड़ जाए, इवन 50,000 भी पड़ जाए, सो जस्ट 1%, हाँ, तो वो मैं आराम से अफोर्ड कर सकता हूं। तो मुझे ये देखना है कि व्हाट इज माय प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द कॉस्ट पर लीड एंड कॉस्ट पर कन्वर्शन, देन ओनली आई शुड स्टेप ऑन इनटू द डिजिटल मार्केटिंग, कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए फिट है या नहीं है। दैट इज वाई आप देखना डिजिटल मार्केटिंग में रेयरली आपको हार्ड कॉपी बुक्स के एड्स मिलेंगे, रेयरली आपको जनरली जो ऐड मिलते हैं वो ई बुक्स के मिलते हैं जिनमें की कॉस्ट नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपको समझनी जरूरी है। हम टूल्स पे आते हैं एसईओ पे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। मतलब मेरा मन इतना है कि पता नहीं मैं क्या पढ़ा दूं, पर मेरे भी कुछ कंस्ट्रेंट्स और कुछ और भी चीजें हैं। एसईओ मैं आपको बता देता हूं क्या है कि अच्छा एसईओ मेरे को चैट पे 1 मिनट के लिए कोई बता सकता है क्या है? प्लीज ये मत बताना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अलावा कोई और बात हो तो बताना। व्हाट इज एसईओ? फटाफट फटाफट लिखो चैट पे, व्हाट इज एसईओ? रैंकिंग ऑफ कीवर्ड, गुड। रैंकिंग ऑफ कीवर्ड, matching keywords mostly searched, okay. Getting results in the top ranks, this is a good answer, Varun Bajaj। ads related to you search, नहीं, ads तो होते ही नहीं है। शिवम, SEO जब हम बात करते हैं it is free of cost, तो ads नहीं है, मतलब that is not ad। by using links of website, Google rank website, that is a tool, using links, linking, using Quora, backlinking, that is all, these are all tools for a good search engine optimization। so these 4-5 are good answers। search objects comes in the first page, top 3 is very I mean optimistic, but yeah, first page is okay, good, that is SEO, right? so I have got some good fair answers। up to 100 criteria to be fulfilled by a website developer to rank his website on top pages of Google। up to 100 criteria, I mean I don't know from where this magic number has come, Radhika, but up to 100, maybe it's more than 100 or maybe I don't know, but yes, there are many criteria to be fulfilled by a website। चलिए मैं आपको ऐसे कुछ दिखा देता हूँ। गूगल है, गूगल सबको दिख रहा है, मैं इसमें डालता हूँ FDP MDP वर्कशॉप, टीचर्स लोग ढूंढते रहते हैं, तो ये ऐसे डाल दिया मैंने। व्हाट इज द फर्स्ट वेबसाइट दैट कम्स इन द रिजल्ट्स? eduimperia.com। ये नीरज सर के लिए शायद ये इंटरेस्टिंग होगा। FDP MDP वर्कशॉप में फर्स्ट जो वेबसाइट है ICSSR, और ये तो स्निपेट है, तो स्निपेट को हम एक बार अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जरा eduimperia.com पे कि ये हमें क्या चीज दिखा रही है। ये हमें एक वेबसाइट दिखा रही है जिस वेबसाइट के ऊपर एक ऐड भी लगा हुआ है, एक चैट भी लगा हुआ है और कुछ वर्कशॉप्स की इंफॉर्मेशन है।
राइट। इसका मतलब इस वेबसाइट का होम पेज क्यों नहीं आया? अगर ये वेबसाइट इतनी अच्छी है, ये तो चैट है, इसको बंद कर देते हैं। इसका होम पेज नहीं आया, इसका ये पेज आया। तो किसी ने कहा ना रैंकिंग कीवर्ड्स, SEO is not ranking keywords, SEO is ranking web page. On search engine. गूगल क्यों दिखाए आपकी वेबसाइट को? मेरे सर इंटरेस्टिंगली मैं बताता हूं आपको, ये मेरी वेबसाइट है। दिस वॉज प्रिपेयर्ड बाय माई ब्रदर इन लॉ एंड these things are posted by me, बट ये बहुत ही मतलब खराब ही कहूंगा मैं, कोई बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि कीवर्ड्स इतने अप्रोप्रिएट हैं कि ये वेबसाइट नंबर 1 में आ रही है। लेकिन इन कीवर्ड्स पे, ऐसा नहीं है सारे कीवर्ड्स पे आ रही, इन कीवर्ड्स पे आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हंड्रेड्स ऑफ क्राइटेरिया पे मैं आंसर दे रहा था कि इवन इफ यू डोंट फुलफिल हंड्रेड्स ऑफ क्राइटेरिया, इट डिपेंड्स ऑन द कीवर्ड दैट अ पर्सन इज लुकिंग फॉर। कीवर्ड्स में बहुत तरह के होते हैं, वो तो फिर मतलब काफी वास्ट हो जाएगा। तो SEO का मतलब क्या है कि SEO is optimizing your web page for a search engine so that it comes on the first page of the search engine। ये सिंपल डेफिनेशन है। बट SEO is on house। घर बना लिया आपने पैसे खर्च करके, मेहनत करके, दिन रात परिश्रम करके, अपना घर है, नो रेंट टू बी पेड। SEM is rented house. Every month you have to pay. You have to pay. आइए देखते हैं, एक कमर्शियल कीवर्ड डालता हूं इस पे, वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर, दिस इज व्हाट इज दिस? कोई बता सकता है मुझे? थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर चैट पे प्लीज दीजिए। व्हाट इज दिस? ये एड लिखा हुआ है और वॉलपूल का एड है। फटाफट बताइए चैट पे, ये कहां से आया? How will we define it? Dr. Arun, in the meanwhile, the students are typing. Where from you are taking the data for MDP, FDP? सर सर कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है ना? नहीं कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं। मजाक कर रहा हूं। सर आई टुक दिस डेटा फ्रॉम योर ईमेल्स और सोशल मीडिया। हाँ, from different sources. That's a wonderful thing. You must share it with the group members, Google group members, because that's okay, I will update it and then share. अभी तो सर सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। That's a really wonderful, really wonderful. Thank you so much, sir. Thank you. So this is okay. I'll go to chat. Thank you. Good. Search advertisement by bidding higher. Okay, bidding high भी हो सकती है, low भी हो सकती है। चिंता मत करिए अगर बिडिंग वगैरह की, है ना। तो मिनिमम से कम मत करना, नहीं तो ऐड डिलीवर नहीं होगा। बस मोस्ट सर्च प्रोडक्ट 9 शिवम, ये एडवर्टीजमेंट है। तो यही तो डिफरेंशिएट करना है कि एडवर्टीजमेंट में और इसमें क्या डिफरेंस है। वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन, नो 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 नो, दिस इज एन एडवर्टीजमेंट अमित। इसमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत ही नहीं है आपको, इसमें तो गूगल को पैसे दे रहे हो आप। Whirlpool had bought the keyword from Google for the keyword water purifier। या ये बिल्कुल सही आंसर है। खैर, हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट यही कर रहे हैं कि SEO है या SEM है। SEM मतलब पैसे खर्च किया आपने। वर्लपूल ने पैसे दिए किसको? गूगल को। गूगल को पैसे आपसे नहीं दोगे, गूगल के हेडक्वार्टर में जाके पैसे देने हैं। ये भी समझना जरूरी है ना। पैसे दिए कैसे हमने दिए गूगल एड्स अकाउंट को रिचार्ज किया, जैसे पेटीएम रिचार्ज करते हैं ना, ऐसे ही इसमें पैसे डालते हैं गूगल एड्स में। गूगल एड्स से दिए और सर्च इंजन पे उसने देखा। गूगल के पास ना सिर्फ ये सर्च इंजन ही है, अपना और कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे लोगों का कंटेंट है, वेबसाइट्स और ब्लॉग्स हैं वो दूसरे लोगों के हैं। गूगल का अपना है, सिर्फ ये सर्च इंजन है जिसमें वो 100% कमाता है। 100%।
और एक कीवर्ड पे गूगल की एवरेज अर्निंग $2000 पर मंथ है, एक सिंगल कीवर्ड पे एवरेज अर्निंग। अब आप देखो मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स हैं, तो गूगल की अर्निंग का आप सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऐड है, उसके बाद ये लोकल एसईओ बोलते हैं हम इसको, इसका भी एक अलग चैप्टर होता है डिजिटल में। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल को ये लगता है कि ये इतना रेलिवेंट रिजल्ट है कि इसको फ्री में भी दिखाना चाहिए मुझे, कैंट फ्री में भी दिखाना चाहिए, अमेजोन फ्री में भी दिखाना चाहिए, इतना रेलिवेंट है। इन्होंने भी पैसे दे रखे हैं, ऐसा नहीं है अमेजोन ने, पर हो सकता है वाटर प्यूरिफायर वाले ने ना दे रखे हो सकता है वाटर प्यूरिफायर, और जरूरी नहीं है कि आपने पैसे दे रखे हैं तो हर सर्च में आपका ऐड दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो भी मोस्ट रेलिवेंट सर्च या उसके हिसाब से गूगल दिखाता है। यहां क्या है, एसईओ आप अपनी मेहनत से अपने पेज को इतना अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं कि लोग आपके उसको, गूगल आपके पेज को हाई रैंक करता है कि भाई ये पेज रेलिवेंट है, इसको मुझे दिखाना चाहिए, राइट। और जब आपको लगता है कि मेरा कंपटीशन बहुत हाई है, आप देखना अमेजोन पे कुछ चीजें ना, जैसे मान लो अमेजोन पे, अमेजोन दोनों में आ जाता है, अभी तो नहीं आया ऐड में, कोई और कमर्शियल चीज डालते हैं, फोन डालते हैं, भी ऐड नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं। बहुत बार आपको ऐसा होगा कि यहाँ वर्लपूल का ऐड भी है, वर्लपूल नीचे भी है, एससीओ में भी है, तो वो दोनों में भी आ सकता है, बिकॉज इट्स रेलिवेंट। क्वालिटी स्कोर बेसिकली होता है, क्वालिटी स्कोर उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। क्वालिटी स्कोर में कीवर्ड है, कीवर्ड्स का परसेंटेज 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3% रिकमेंडेड है। उसके लिए हम वेबसाइट में एक टूल लगाते हैं, योस्ट एससीओ, वेरी पॉपुलर टूल। उसके हिसाब से हम रिफाइनिंग करते हैं अपने पूरे कंटेंट की। उसके बाद आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये आपके बेल शेप कर्व जो होता है उससे आया हुआ है, जो स्क्यूड कर्व में जिसमें लॉन्ग टेल हो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और वो स्टैटिस्टिक्स आया है लॉन्ग टेल कीवर्ड भी। बट दीज थिंग्स टेक लॉट ऑफ टाइम। जब एसईओ के ऊपर पूरा हम एक दिन डिस्कस करते हैं 4-5 घंटे। अरुण सर, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसका है? अरुण सर, बहुत सही है सर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे वरुण का। जी वो ये पूछ रहे हैं जी कि सर। आपने जो वो कहा कि कीवर्ड वर्लपूल के पास आ गया, क्या वो बिडिंग प्रोसेस से होता है? अच्छा, दिस गोज थ्रू बिडिंग। ओके, मुझे लगा ये शायद आंसर है। यस, यस, ये बिडिंग प्रोसेस से होता है। बिडिंग इन दी एडसेंस, सॉरी गूगल एड्स। ठीक है, मैं जरा 2 मिनट लूंगा, आपको गूगल एड्स अकाउंट का एक थोड़ा शक्ल दिखा दूं एक बार। दिस इज गूगल एड्स। मीनवाइल ये ओपन होता रहेगा, तब तक हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल गूगल एड से आता है। जब आप कीवर्ड डालते हो ना, तो आपको मैक्सिमम बिडिंग अपना प्राइस डालना पड़ता है। अगर वो बिडिंग प्राइस बहुत ही कम है, क्योंकि हर आदमी कम ही डालेगा ना, मैं तो कहूंगा मुझे तो ₹1 में मेरा ऐड कर दो या 50 पैसे में कर दो, तो वो कंपटीशन पे डिपेंड करता है। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उसकी प्राइस ज्यादा है, तो गूगल एड को डिलीवर नहीं करेगा, फिर ये दिक्कत आती है उसमें। तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब डिलीवर करेगा। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, गूगल एड्स खुद अपना ऐड गूगल पे कर रहा है, मतलब यही अकाउंट पैसे दे रहा है और उसी में पैसा आ रहा है। इंटरेस्टिंग ना। ग्रेट। तो ठीक है, इसी पोस्ट पे आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा। तो एसईओ और एसईएम का डिफरेंस होपफुली समझ आ गया होगा। एसईओ का मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि किस वेबसाइट का सबसे अच्छा है, तो मैं बता देता हूँ, इट इज विकिपीडिया, which never spends a single penny, but because of its quality, it has the best SEO.
देखिए गूगल, विकिपीडिया, कोई भी चीज आपको ढूंढनी है, कॉन्सेप्ट ढूंढने हैं तो विकिपीडिया। एक तो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी नहीं है विकिपीडिया का कोई, मतलब ये अपने आप में एक अलग ही चीज है। तो इसी में क्या होता है, इवन इफ यू स्टॉप पेइंग मनी, आई मीन यू नीड नॉट पे मनी, सॉरी मैंने गलत टर्म यूज किया, एसईओ में यू डोंट पे मनी। ओके, मैं कहाँ पे था, हाँ फायरफॉक्स पे था। बस एक बार मैं साइन इन में डाल देता हूँ इसको, क्योंकि स्पीड थोड़ी स्लो रहती है। ये गूगल एड्स अकाउंट है, इसमें आपको एक वेबसाइट का यूआरएल जरूर डालना पड़ता है, तभी आप ऐड कर सकते हैं, सर्च इंजन एडवर्टीजमेंट। बाकी आप इससे यूट्यूब में ऐड कर सकते हैं, आप इससे ब्लॉग्स, वेबसाइट्स पे ऐड कर सकते हैं, और आप इससे सर्च डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं। काफी सारे एड्स हैं इसमें, डिस्प्ले, शॉपिंग, इस तरह के मिला के बहुत सारे एड्स हैं जो आप कर सकते हैं। लेट इट ओपन, मीनवाइल तो 5-10 मिनट हम देख लेते हैं। तो अभी तक हमने काफी सारी चीजें करने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसमें कुछ कुछ पार्ट हम कर पाते हैं। यूट्यूब का भी मैं एक बार आपको बताऊंगा, 2 मिनट अगर ये खुल जाता है तो। हाँ जी, ये गूगल एड्स है, देखिए ऑल कैंपेन्स, जो मैंने कैंपेन की होंगी वो बताएगा। ईमेल आईडी से चलता है, दिस इज वन ऑफ माय ईमेल आईडी, दिस इज माय एड अकाउंट नंबर, दीज आर टूल्स। ठीक है, मैं आपको बहुत क्विकली एक चीज दिखाता हूँ। इस सर्च का बटन, पहले इस बटन का नाम गो टू होता था, गो टू मतलब कहीं चले जाओ, लेकिन शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो इन्होंने सर्च कर दिया इसको। तो सर्च फॉर ए कैंपेन, और किसी भी चीज के कैंपेन्स मैंने की हुई उनको कर सकते हो, कीवर्ड के लिए कर सकते हो। कीवर्ड्स, कीवर्ड प्लानर, तो कीवर्ड प्लानर में जाके शोइंग नन ऑफ योर एड्स आर रनिंग, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट विल शो ए कीवर्ड प्लानर, और उसके बाद वो आप जो भी कीवर्ड डालेंगे वो उसका सब कुछ बता देगा आपको कि इसके ऊपर इतना ट्रैफिक है, इतना कंपटीशन है, इतने की बिड है, एवरेज बिड क्या रही है, तो उसके हिसाब से यू कैन प्लान। वो बजट भी प्लान कर देता है आपका मंथली, या जितना आप स्पेंड करना चाहते हो, इट टेल्स यू कि कैसे कैसे क्या क्या आएगा। तो फाइंड योर कीवर्ड्स एंड ऑल अपडेट होते रहते हैं। डिजिटल में ये भी है कि चीजें बहुत अपडेट होती रहती हैं। ये मैंने कभी ड्राफ्ट प्लान किया था, उसका होगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो अगर गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट में जाए हम, और हम करें कि वाटर प्यूरिफायर मेरे को डालना है, स्पेलिंग करेक्ट। इसमें गलत स्पेलिंग वाले कीवर्ड भी चलते हैं, क्योंकि गूगल पे गलत भी तो टाइप करते हैं ना लोग, प्रैक्टिकली कोई टेंशन नहीं। ये देखिए, योर प्लान कैन गेट 2800 क्लिक्स और 55,000 मतलब एक क्लिक आपको 46 रुपीज की पड़ेगी, 46 रुपये एक क्लिक पड़ेगी। ये क्लिक है, ये कन्वर्जन नहीं है। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। ये और एवरेज पोजीशन आएगा 1.6। व्हाट इज एवरेज पोजीशन? ये जो गूगल सर्च है ना, यहां इसमें मैंने डाला वाटर प्यूरिफायर, ठीक है। यहां मेरी पोजीशन आई सपोज नंबर 1, नंबर 2। कभी ऐड में भी जरूरी नहीं है नंबर 1 पोजीशन आए, पैसे देने के बाद भी नंबर 2 भी आ सकती है, नंबर 3 भी आ सकती है। फर्स्ट 4 में आता है बस, और लास्ट के 3 में, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे भी इसी तरह का रूल है लास्ट का। तो फर्स्ट 4 में से कोई भी पोजीशन आ सकती है मेरी, लास्ट 3 में भी आ सकती है। उसकी एवरेज पोजीशन ये बता रहा है, इफ यू स्पेंड दिस योर एवरेज पोजीशन विल बी 1.6, ठीक है। CTR इज 5.5%। व्हाट इज CTR? क्लिक थ्रू रेट। चलो हम लोग YouTube पे तो देखेंगे, मैं आपको 3 जो है ना ये बता देता हूं, इम्प्रेशन, CTR एंड रीच। आई थिंक दिस इज बेस्ट टू एंड ऑफ दिस सेशन। बेस्ट थिंग है। व्हाट इज इम्प्रेशन? इज रीच? व्हाट इज CTR? Impression is number of times an advertisement is seen. Post advertisement, post is seen.
Okay. Reach means number of persons, number of unique persons. PTR means number of persons picked. यहां मैंने यूनिक पर्सन्स नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, CTR रेट है ना, रेट तो परसेंटेज में होगा, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस मल्टीप्लाइड बाय, ये जो चीज है ना, ये है 5.5। मतलब 100 में से 5.5 लोग क्लिक करेंगे, सीधी सी बात ये है। 100 में से 5.5 पीपल विल, तो इंप्रेशन आपका 51 है और ये आपका ये है एवरेज सीपीसी, यहाँ ये मैक्सिमम सीपीसी है, सॉरी 46 मैक्सिमम है, एवरेज तो 20 है, तो 20 तो ठीक है, अगर वाटर प्योरीफायर आप बेच रहे हैं तो 20 इज ओके। 10, 11, 12 रुपए होता तो और अमेजिंग होता, बट ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये इसने नीचे सारा ये दिखा दिया कि ये सब आपका आए। सो दिस सबसे अच्छी बात क्या है कि गूगल इस चीज के लिए, इस एनालिसिस के लिए कुछ चार्ज नहीं करता आपसे उसने, क्योंकि उसको पता है कि डोंट सेल, हेल्प। सेल करने से माल नहीं बिकेगा, हेल्प करो लोगों की, वो अपने आप खरीद लेंगे, है ना। तो वही चीज है। होप दिस मेक्स यू एनीथिंग क्लियर। अब आते हैं हम इस पे, इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब है, मैंने एक चीज को, चलिए मैं एक वो देता हूं एग्जांपल आपको। आपकी क्लास में एक टीचर आए, क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो इंप्रेशन कितना हुआ, सबने देखा टीचर को 35। वही टीचर नेक्स्ट डे भी आए, इंप्रेशन कितना हुआ 35। टोटल इंप्रेशन कितना हुआ 2 दिन का 70। हर बात देख लिया आपने टीचर को, 35 and 35, बट व्हाट इज द रीच? Reach is still 35 because there are only 35 unique students. This is the difference between reach. Interestingly, Facebook shows you, Facebook charges for, Google charges for ये बहुत अच्छी बात है कि वो फेसबुक को दिखाने के चार्ज कर लेता है पैसे, कि हमने दिखा दिया, लोग क्लिक करें ना करें, लेकिन गूगल कहता है नहीं, लोग जब क्लिक करेंगे मैं तभी आपसे चार्ज करूंगा। लेकिन दोनों पॉपुलर है, कंपटीशन इतना है, ROI बहुत अच्छा है इसमें डिजिटल में, इसलिए लोग ऐड करते हैं, दे स्पेंड मनी। तो अभी के लिए तो इतना ही मुझे लग रहा है, बाकी हर टॉपिक पे हम कर सकते हैं सेशन करने को। तो सर दैट्स रियली ग्रेट। सर एक छोटा सा एक क्वेश्चन है सर अमित का, कि गूगल ऐड के अतिरिक्त और भी कोई हमारे पास टूल है क्या? हाँ, अच्छा, KPI API थोड़ा एलोबरेट करेंगे निशांत, फिर मैं उस पे आता हूँ पहले क्वेश्चन पे। चलो पहले ये ले लेते हैं, गूगल एड्स के अलावा हमारे पास देखिए फेसबुक है, ट्विटर है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के सारे टूल्स हैं हमारे पास, मतलब वी कैन एडवर्टाइज ऑन, और हम याहू पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक तो दिक्कत ये है ना कि याहू वगैरह, जैसे मान लो आप याहू पे भी आप सर्च करेंगे ना, तो याहू खोले कई मतलब ईयर्स हो जाते हैं समझो, इस पे भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। यहाँ भी वही SEO SEM सारी चीजें हैं। सपोज ये देखिए सब गूगल की तरह, ये देखिए एड्स रिलेटेड टू, उसने पहले बता दिया ये एड्स है ना, ठीक है। एड नहीं है वो ऑर्गेनिक है, ये ना एड्स रिलेटेड टू वाटर, ये सारे ऐड। ये आपको अगर ध्यान हो, मतलब शायद स्टूडेंट्स की एज तो सर नहीं होगी उस हिसाब से, लेकिन आपको और मुझे जरूर पता होगा, पहले गूगल पे भी ऐसे ही आते थे राइट साइड में, और येलो उसका बैकग्राउंड होता था, येलो में ऐड आते थे गूगल में, इधर नहीं आते थे, इधर आते थे।
तो वो साइबर कैफे वाले बोलते थे कि इनको क्लिक मत करना, ये बकवास है। राइट। ये था। हाँ, पहला क्वेश्चन अदर टूल्स वाला प्रॉब्ली आई हैव आंसर्ड अमित। ये टूल्स जो है ना हमारे पास, सोशल मीडिया के सारे टूल हैं और बाकी सर्च इंजन के भी टूल हैं, और अभी टिकटॉक काफी ग्रो कर रहा है एडवर्टाइजमेंट में। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजिंग के लिए। यूट्यूब सीओ भी आ गए, यूट्यूब में डिस्प्ले ऐड भी आ गए हैं, और सर्च इंजन ऐड भी आ गए हैं। इनफैक्ट यूट्यूब में सर्च वाले ऐड भी आ गए हैं। यूट्यूब का तो अपना एसईओ है। यूट्यूब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है अपने आप में। मतलब गूगल के बाद यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च होते हैं, तो वो सर्च इंजन ऐड में भी आ गए। अच्छा निशांत, आप थोड़ा केपीआई एपीआई को, मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ये क्या चीज है, मतलब एलोबरेट कर सके तो चैट पे बेटर रहेगा। यस सर, बट प्रोसेस इट इज डिफरेंट। हाँ ऑफ कोर्स प्रोसेस इज डिफरेंट। देखिए सर्च इंजन की तरह काम करता है ना। सर्च इंजन में आप यू कैन कंपेयर गूगल विद याहू ओनली और बिंग और एनी अदर सर्च इंजन, दे हैव सिमिलरिटी। बट सोशल मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में लिंक्डइन इज सिमिलर टू, नॉट आइडेंटिकल ऑफ कोर्स, सिमिलर टू ट्विटर, ट्विटर इज सिमिलर टू दिस फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना। तो उनका बिल्कुल, अगर आप जैसे फेसबुक सीख लेंगे ना तो इंस्टाग्राम अपने आप सीख लेंगे, या लिंक्डइन पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। वही कैराउजल एड्स हैं, वही स्टिल एड्स हैं, वही लीड मैग्नेट फॉर्म है, वही सारी टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं, है ना। चलिए, तो केपीआई एपीआई के लिए तो आप रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज है अभी। अच्छा, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अच्छा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ना एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई और टर्म है। अच्छा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अगर हम बात करें तो ये वैसे बहुत एडवांस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ इट इज रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट्स, फेसबुक आपको ये बताता है कि आपका एड कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे गूगल है, गूगल में एड पे आपका सीटीआर बहुत ही खराब है। इसका मतलब आपने एड अच्छे से डिजाइन नहीं किया। ये जो ऐड होता है ना गूगल, ये जैसे मान लो सपोज आप इमेजिन करो कि ये ऐड है, अभी है नहीं ये, पर ये ऐड है, तो ये सारा हम खुद डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें, सब कुछ, फोन नंबर डालना, ये करना। अगर आपको कॉल नहीं आ रहा है, अगर आपके क्लिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने ऐड खराब डिजाइन किया है। तो उससे आपका फेसबुक आपको एक क्वालिटी स्कोर दिखाता है, गूगल भी आपको क्वालिटी स्कोर दिखाता है कि आपके जो सीटीआर रेट है वो अगर खराब आ रहा है, इसका मतलब आपने ऐड अच्छा डिजाइन नहीं किया। Application program interface. Application program interface. I really don't have an idea. I'm not a computer guy, so maybe हो सकता है use किया हो मैंने कभी. Sir, when we run a campaign, the advertiser says that I need 5% KPI or 8% KPI, so I didn't get that thing. Okay, you are talking about the multimedia campaigns? Yes, sir. Sorry, I mean the mass media campaign. Yes. the TV advertisement or that kind of campaigns. Key performance indicator. That may be ran on these ओके। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस आई रियली, अभी भी मुझे लगता है कंप्यूटर बेस्ड है। केपीआई का क्या है कि आई थिंक इट इज रिलेटेड टू व्हाट अ मार्केटर अर्न्स एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ अ पर्सन हु मेक्स द क्रिएटिव। ओके, तो वो एक तरह से रॉयल्टी बेस्ड या उस तरह का एक क्राइटेरिया हो सकता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। I have to work on it to get more. API is also connected to affiliate marketing and all. हो सकता है। एफिलिएट एक अपने आप में पूरा बहुत बड़ा फील्ड है। आई हैव डन फ्यू थिंग्स इन एफिलिएट, बट एफिलिएट को भी ना बहुत ज्यादा कमर्शलाइज किया हुआ है बाद में। इनफैक्ट एफिलिएट को भी लोग गूगल एड से चलाते हैं। They get affiliate links and they advertise it on Facebook and Google and then earn money. Yes. So it's again a big thing. मुझे लगता है जो शुरू में मैंने बोला था कि डिजिटल वालों को मार्केटिंग नहीं आती, मार्केटिंग वालों को डिजिटल नहीं आता, तो शायद I'm basically from marketing, so maybe I'm missing somewhere some computer generated terms. Okay. Any more questions, please? 5 minutes. And there were 2 questions. Okay, Dr. Arun, I have 2 questions on behalf of all the students. Number 1, Sir, is there any study material for the same? Any book or any blog or something they can read? Yes, sir. There is a very good book by Seema Gupta.
She is an IIM faculty, and she has a book with McGraw Hill, Okay. and it's a good book. I mean, it's not typical textbook. It's a good book. Secondly, there is a lot of material, sir. I have PowerPoint presentations I can share, and on YouTube also there is lot of good material, and some free courses. Yeah, just let me show you the slide. I will share this slide also. सबसे इम्पोर्टेंट है आप गूगल सर्टिफिकेशन करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी होंगे कुछ बच्चों ने, इसमें मैंने एक स्लाइड डाल रखा, ये देखिए आप, गूगल सर्टिफिकेशंस, HubSpot सर्टिफिकेशंस। आई हैव डन HubSpot सर्टिफिकेशन इन कंटेंट मार्केटिंग। ब्लॉगस्पॉट आप बनाइए, और जैसे मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, आप यूट्यूब से सीख के ब्लॉग बनाइए, उस पर काम कीजिए और उसको मोनेटाइज कीजिए। यूट्यूब चैनल बनाइए, इंस्टाग्राम पे कुछ अगर आपको कोई शौक है तो आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। वर्डप्रेस, यूट्यूब वीडियोस टॉपिक वाइज, यूट्यूब से आप अपना चैनल बना सकते हैं। लर्निंग भी यूट्यूब से करें और अर्निंग भी करें। अर्निंग थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं लेटर स्टेज पे। फ्री कोर्सेज अवेलेबल बाय एक्सपर्ट्स में ना एक नाम आप नोट कर सकते हैं, दीपक कनकराजू। तो कुछ पार्ट फ्री है, बाकी वो पेड है पार्ट, बट बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है, जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। आप 5-10,000 स्पेंड करके अगर पूरा आपको SEO सीखने को मिल जाए या पूरा सोशल मीडिया सीखने को मिल जाए, तो ही इज गुड इन दैट। MOOCs के कोर्सेज हैं, लेकिन अभी डिजिटल में कोई बहुत अच्छे कोर्सेज नहीं है। आई विल हाईली रिकमेंड यू गूगल एंड HubSpot में आपको एक इंस्टीट्यूट आईडी चाहिए आई थिंक, बट गूगल तो आप आराम से कर सकते हो। गूगल सर्टिफिकेशंस बिगनर्स के लिए भी हैं, एडवांस भी हैं। जो हमने अभी किया वो बिगनर्स लेवल पे भी नहीं था, मतलब गूगल सर्टिफिकेशन का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अच्छी बात कहें मुश्किल कहें, 75% पे पासिंग मार्क्स हैं इनके। 75 गूगल है और शायद 80% HubSpot है। तो जब तक आप थोरोली, वैसे देखिए इसमें भी बहुत सारा करप्शन शुरू हो गया है। पीपल चार्ज 300 रुपीज फॉर सर्टिफिकेट, लेकिन सब बकवास है, उससे लर्निंग तो होगी नहीं आपकी। यू जस्ट लर्न, अटेम्प्ट द टेस्ट एंड क्लियर इट। तो काफी सारा मटेरियल मेरे पास PPTs की फॉर्म में है, जो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं सर को मेल कर दूं। मेरे पुराने लैपटॉप में है, जो थोड़ा रिटायर हो गया अभी, तो एज सून एज आई ओपन इट, 1-2 दिन में मैं सारा मटेरियल काफी सारा मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें गूगल सर्टिफिकेशन मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल है। सर ये सेकंड वाला जो है HubSpot, इसकी स्पेलिंग ठीक है? जी सर। HUBS एक बी सर वो अब एक बी शायद फालतू हो गया, HubSpot, हाँ ये गलत स्पेलिंग। हाँ ओके, HubSpot ये भी नहीं। तो HubSpot जो है वो बहुत वास्ट है, मतलब HubSpot ने इतना काम किया है, वो कंसल्टिंग में भी है, और इसमें ना डिजिटल इतना वास्ट है कि इसमें जैसे एक पूरा चीज हमने छोड़ दी, जो पेड टूल्स हैं डिजिटल के। जैसे लो आपने एक आपकी वेबसाइट में 50 कमियां हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए टूल्स हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल है SEM रश, तो फ्री में थोड़ा सा देगा वो, जब पे करोगे तो वो खूब देगा। तो यही होता है कि डिजिटल में कंपनियां खुद ऐड नहीं करती, वो एजेंसीज के थ्रू ऐड करती हैं, क्योंकि एजेंसीज कैन बाई द टूल्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज, लैक्स ऑफ रुपीज, बिकॉज दे सर्व मोर देन 100 क्लाइंट्स एट अ टाइम। तो अगर डिजिटल में आपको सच में आगे जाना है, तो हमेशा किसी बड़ी एजेंसी के साथ आप अपना करियर स्टार्ट करो, रादर देन सर्विंग अ सिंगल क्लाइंट। कुछ नहीं सीख पाओगे वहां। और अगर बड़ी एजेंसी के साथ करोगे तो उसके पास टूल्स होंगे, पेड टूल्स, तो आप बहुत कुछ सीखोगे वहां पे, उन पेड टूल्स पे काम कर करके, राइट? Sir, my second question is, do you take any online workshop also? सर अभी तो कुछ प्लान नहीं है, अभी लेता नहीं हूं मैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई प्रपोजल है तो वी कैन थिंक ऑन इट, थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, है ना? Sure, sir, sure. So I think nobody has typed anything in the chat box, so I consider there are no more questions, and we have taken it more than 75 minutes. So that's such a wonderful session, sir.
So you have explained so many things in so much detail with this limited time. I hope all the students got some idea about the digital marketing, and will certainly would love to call you again for any of such sessions. Sure. Sure, sir. We can plan on YouTube, 1 hour session on YouTube also. So that's not a problem. Anytime you say, I can see my schedule because Right. classes in university are still going on. Right. So till third, but we can take these sort of sessions on any like Saturday, Sunday kind of thing. 1 hour session, not a problem. And if you feel so that we can design some kind of workshop thing, so that can also be designed. Right, sir. Both are no problem at all. We'll be certainly in touch for that. And now, sir, on behalf Thank you, of all the students of NIT, I thank you, sir, for taking this much time for us. Our gratitude, sir. Thank you. Pleasure is all mine, sir. I'm privileged that you gave me a chance to interact with such nice students, and I thoroughly enjoyed. After a long time, I'm taking a session because of lockdown. I thoroughly enjoyed the session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everybody, for joining.